સંસ્કારી નગરી વડોદરામાં આવેલી ઇન્ડિયન રેલવેઝની પાર્સલ ઓફિસમાં એજન્ટો અને લીઝ હોલ્ડર્સ દ્વારા સીએલએસ અધિકારી સામે વિવિધ આક્ષેપો કરવામાં આવ્યા છે. એજન્ટોના જણાવ્યા મુજબ પાર્સલ ઓફિસમાં તેમની સાથે ગેરવર્તણૂક કરવામાં આવે છે અને વધુ લોકો પ્રવેશ ન કરે તે માટે પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવે છે. રોજિંદા બુકિંગ કરતા એજન્ટોને ઓફિસમાં પ્રવેશમાં મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડે છે. આક્ષેપ મુજબ કેટલાક કિસ્સાઓમાં એજન્ટોનો સામાન બહાર કાઢી દેવામાં આવ્યો હતો અને ઓફિસમાં પંખા જેવી સુવિધાઓ પણ દૂર કરવામાં આવી હતી, જેના કારણે ગરમીમાં તકલીફનો સામનો કરવો પડે છે. એજન્ટોએ વધુમાં જણાવ્યું છે કે ઓનલાઈન પેમેન્ટ માટે દબાણ કરવામાં આવે છે, જ્યારે પીવાનું પાણી, પબ્લિક ટોયલેટ, પાર્કિંગ અને બેસવાની યોગ્ય વ્યવસ્થા જેવી મૂળભૂત સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ નથી. એજન્ટો અને લીઝ હોલ્ડર્સનો આક્ષેપ છે કે મનસ્વી નિયમોના કારણે સામાન્ય નાગરિકો અને વેપારીઓને મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. હાલ આ તમામ મુદ્દાઓ એજન્ટોના આક્ષેપો પર આધારિત છે. સંબંધિત અધિકારીઓ અથવા રેલવે તંત્ર તરફથી સત્તાવાર પ્રતિસાદ હજી સામે આવ્યો નથી. હવે જોવાનું રહેશે કે ઉચ્ચ અધિકારીઓ આ મામલે શું પગલાં લે છે. હું જયપ્રકાશ ચૌહાણ, રેલવે ડિપાર્ટમેન્ટ જોડે સંકળાયેલા લીઝ હોલ્ડર સાથે વર્ષોથી કામ કરું છું અને મારું પોતાનું ગુજરાન ચલાવી રહ્યો છું. આ સીપીએસ સાહેબ જે નવલ કિશોર છે એ ઘણી વખત મારું અપમાન કરેલું છે, બોલવાનું કે એમને એ છે નહીં, અને આ વસ્તુની કમ્પ્લેન લીઝ હોલ્ડર ભાઈઓએ ઉપરી અધિકારી બી કરેલ છે, પણ છતાં બી હજુ એમને જાણ કરી નથી અને હજુ બી અપમાન કરવાનું ચાલુ. મને કાયમ એમ જ છે કે તું અહીંથી જતો રહે, તું તાજી મારી જોડે વાત કરે છે કાયમ માટે. આપને કોઈ અધિકારીઓને આપ જણાવવા માંગો છો? આપની શું માંગ છે અધિકારીઓ પાસેથી? મારી માંગ એટલી છે કે એમને કે બોલવાનું વર્તન એમને થોડું શીખવાડવામાં કે કઈ રીતે કોઈ ઉંમરલાયક માણસ જોડે કેવી રીતે વાત કરવી જોઈએ એમને થોડું આપ જણાવો. બસ મારું એટલું જ કહેવું છે. હું ગોપાલ શ્રીનારાયણ શાહ, વડોદરા રેલવે લીઝ એસોસિએશનનો મેમ્બર છું અને થોડાક ટાઈમથી રેલવે પાર્સલ ઓફિસમાં ફરજ બજાવતા મિસ્ટર નવલ કિશોર, જે ચીફ પાર્સલ સુપરવાઇઝરની ખુરશી પર બેસે છે, એનું અમારા લીઝ હોલ્ડર પ્રત્યે અને પ્રજા પ્રત્યે બંનેના પ્રત્યે એટલું ગેરવર્તન થઈ ગયું છે, એના માટે અમે ઉપર સુધી કમ્પ્લેન કરી છે અને એ અમને ત્યાં બેસવા નથી દેતો અને ગમે તેવું વર્તન અમારી જોડે કરે છે. એની ખુરશીનો એનું સત્તાનો દુરુપયોગ કરીને એ અમને દબાવવા માંગે છે અને રેલવે પાર્સલની નીચેની જગ્યા એ લોકોએ એક કંપનીને ભાડે આપેલી છે. અમારા પર દબાણ લાવવામાં આવે છે કે તમે એ જગ્યામાં માલ મૂકો અને એને તમે ભાડું ચૂકો. તો શું કોઈ પણ સરકારી માણસ બહારના માણસને સપોર્ટ કરી શકે? અને સપોર્ટ એ લોકો કરી રહ્યા છે તો કયા બેઝ ઉપર સુધી શું કશું પૈસા પહોંચે છે? એ કંપની વાળો કઈ પૈસા ઉપર પહોંચાડે છે જેનાથી સાહેબ એને રેલવેના બધા સાહેબો એને સપોર્ટ કરી રહ્યા છે. मैं धीरेन्द्र नाथ मिश्रा बड़ोदरा पार्सल ऑफिस पे लीज होल्डर के तौर पर काम कर रहा हूँ. लगभग 15 से 16 साल हो गए मुझे करते हुए. अभी जो स्थिति बन रही है बड़ोदरा रेलवे पार्सल ऑफिस में, यह स्थिति मुझे 14 साल पहले कभी भी नहीं हुआ करता था. जैसे कि अभी हमें हर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. पहले तो कोई उचित जगह हमें नहीं दी जा रही है कि जहां हम लोग बैठ करके अपना कोई बिजनेस धंधा दे सकें. एक बात. दूसरी बात यह है कि अगर हम लोग कोई पार्सल बुक करने आते हैं तो हमारी जो 2 चक्के की गाड़ी व्हीकल्स वगैरह हैं, हम उसको कहाँ पार्क करें, ये कोई सुनिश्चित एक जगह निर्धारित कर दी जाए जहाँ पे हम रख पाए. उसके लिए बोलते हैं कि पार्किंग में रखिए. पार्किंग में साहब इसलिए नहीं रख सकते, हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि उसमें हर एक घंटे 1.5 घंटे के बाद, हर आधे घंटे के बाद मेरी अलग अलग गाड़ियां होती हैं. तो कितनी बार मैं उसको पार्किंग में रखूंगा, कितनी बार उसको वापस लेके आऊंगा? हर बार जाऊंगा 20 या 30 रुपीज उसका है. तो इस प्रकार से हम लोग कितना चुकाएंगे पार्किंग का? सेकंड बात, इस प्रकार से अगर त्रास दिया जाएगा, ये 4 से 5 दिन में बहुत ज्यादा कुछ त्रास दिया जा रहा है. कुछ लोगों के पार्सल भी फेंक दिए गए पार्सल ऑफिस में, जबकि वो नियम के बिल्कुल ही विरुद्ध है. उसमें आप क्या कर सकते हो, अगर रेलवे प्रीमाइसी में अगर किसी का पार्सल अनाधिकृत रखा हुआ है तो आप उसको जमा करके उसमें दंडात्मक कार्रवाई करके आप उससे वसूली कर सकते हो, न कि उसको अभद्रतापूर्ण फेंका जा सकता है पार्सल ऑफिस से. थर्ड बात यह है
कि अगर इस प्रकार से हम लोगों को प्रताड़ित किया जाएगा, हम लोग एक सिक्के के दो पहलू हैं। रेलवे को अगर हमारी जरूरत है तो हमें भी रेलवे की जरूरत है। अगर उसको हम बिजनेस दे रहे हैं तो वो सुविधाएं हमें कॉपरेट करने का वो करे, तो हम उसको कुछ बिजनेस दे पाएंगे। जब हमें कॉपरेट ही नहीं करेगी तो हम अकेले बिजनेस कहाँ तक दे पाएंगे उनको, ये एक बात। दूसरी बात यह है कि ये लोग जैसे बोलते हैं कि अपनी लीज लीजिए। अभी 2-3 दिन पहले हम लोगों को बुला करके मीटिंग किया गया, पूरे एसोसिएशन के सारे मेंबर्स मौजूद थे। उसमें बोला गया कि आप आओ और मीटिंग करो और ये फला 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 गाड़ियों का टेंडर है। तो हम लोगों ने सहज स्वीकार कर लिया कि साहब कुछ मेरी मांगे हैं, उस प्रकार से अगर आप लोग कॉपरेट करते हो तो हम लोग लीज ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग तो लीज चला ही रहे हैं, ये भी गाड़ियों का ले लेंगे। बट जिस दिन से मीटिंग होकर गई उसके दूसरे दिन से ही बहुत ही गलत बर्ताव मेरे आदमियों के द्वारा, लेबरों के द्वारा हर प्रकार से प्रताड़ित करके उनको परेशान किया जा रहा है। और अगर इस ढंग से चलता रहेगा, तो इस प्रकार से अगर चलता रहेगा तो हम लोग देखिए, हम लोग लीज का बहिष्कार करेंगे। जो मेरे पास लीज है वो भी हम लोग इग्नोर करेंगे और जो नया टेंडर है उसमें कतई हम लोग नहीं डालेंगे। और इसका हम लोग इंतजार केवल करेंगे सोमवार तक। सोमवार तक अगर पूर्णतया कार्रवाई नहीं होती है, हमारी इच्छा मुताबिक कार्य नहीं होते, तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। और इस प्रकार से अभी जैसे कि कुछ देर मेरे मित्र ये अपने जयप्रकाश जी बता गए कि उसमें उनके साथ अभद्रतापूर्ण बर्ताव किया गया, जबकि हम लोग भी सामने थे। उसके लिए हम लोगों ने देखा कि ऐसे अभद्रतापूर्ण, एक बाप के पिता के तुल्य हैं उनके, और उनसे अभद्रतापूर्ण बर्ताव किया गया। उसमें से एक मेरा मित्र ने बोला कि आप इस ढंग से बात नहीं कर सकते, तब उसके बाद वो सेंस में आए। तो मैं ऑफिसरों से यही गुजारिश करूंगा कि जो भी यहाँ कार्यरत कर्मचारी आवे उसको कम से कम छोटे बड़े से सभ्यतापूर्ण बात करने के लिए जरूर उनको अवगत करा करके ही भेजा जाए, क्योंकि अगर इस प्रकार से या असभ्यतापूर्ण बात करेंगे तो कोई कस्टमर नहीं, हम लोग भी धीरे धीरे क्या करेंगे, बहिष्कार करेंगे। और बहिष्कार करके बड़ौदा पार्सल ऑफिस को छोड़ करके हम अहमदाबाद की तरफ मूव होंगे, सूरत की तरफ मूव होंगे। तो ये बिजनेस जाएगा बड़ौदा पार्सल ऑफिस का एक ऑफिसर की वजह से। आपकी क्या मांग है? आप क्या चाह रहे हो यहाँ के अधिकारी से और उच्च अधिकारी से और जो आप सरकार से? हम सरकार से ये गुजारिश करना चाहते हैं आपके न्यूज के माध्यम से कि अगर इनके खिलाफ कोई उचित कार्रवाई नहीं की जाती या फिर जो आपको उचित लगे उस प्रकार से इनके साथ कार्रवाई करके और हम लोगों को न्याय उचित जो भी हो कानूनी कायदे तरीके हम लोगों का मुहैया कराया जाए और हमसे बिजनेस लिया जाए। हम लोग सेवा करने के लिए तैयार हैं रेलवे का, और हम लोग सब कुछ करेंगे जैसे अभी तक करते आए। इसके पहले मुझे कोई दिक्कत नहीं थी या किसी को भी कोई दिक्कत नहीं थी, इसलिए चलता रहा। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके माध्यम से मुझे बताना चाहिए, क्योंकि सर के ऊपर पानी जा चुका है, बहुत परेशान किया जा रहा है हम लोगों को। आपकी कोई और मांग है आप काम के लिए? काम के लिए मांग यही है कि जो हम लोग काम तभी करेंगे इस प्रकार से जिस प्रकार से कुछ निम्न जो इसके पहले मापदंड चले आ रहे थे, अभी बताते हैं कि ये चीज नहीं है, वो चीज नहीं है, क्योंकि चले आ रहे थे, समय से चले आ रहे हैं, तो वही उतनी चीज चाहिए अपने लोगों को कि ये चीज है कि उतना ही ये लोग प्रोवाइड करें, बाकी अपने को वो नहीं है। जैसे कुछ एथराइज लीज होल्डर हैं यहाँ पे, उनको अब गाड़ी वो नहीं खड़ी करेंगे, गाड़ी आएगी 2 घंटे बाद और माल खींचना है तो वो 2 घंटे के लिए गाड़ी खड़ी करने कहाँ जाए, तो खास करके पार्किंग की व्यवस्था की जाए। दूसरा, पानी पीने की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है बड़ौदा पार्सल ऑफिस पे। अगर वो कोई बताता है कि प्लेटफॉर्म पे लगा हुआ है पानी का, मगर वहां जो बैठे अभी कुछ लोग हैं लड़के, उनको बोला कि भाई आप लोग यहाँ केवल बुकिंग करो और बाकी नीचे जाओ। तो जब वो बुकिंग करने के बाद नीचे जाएगा तो पानी पीने के लिए कौन सा लीगल तरीका है कि वो ऊपर जाएगा पानी लेने? उसको भी बोलेंगे कि भाई ये कोई लीगल तरीका नहीं है आपको पानी आने के लिए, आपको केवल पार्सल के लिए पार्सल दिया गया है, पार्सल बुक करने के लिए, इसलिए वापस भेज दिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि इसके पहले कुछ दिन पहले डीसीएम साहब के द्वारा मीटिंग हुई थी, उसमें बताया गया कि अगर आप लोगों को कहीं एक सुनिश्चित जगह दी जाएगी बैठने के लिए, एजेंटों के लिए, कहीं भी आप साहब चले जाइए, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, हर जगह आपको ऐसी जगह मिलेगी कि वहां पे जरूर मिलेगा। चाहे आप कोर्ट में चले जाइए, वकीलों को कोई भाड़ा नहीं भरना है, फिर भी जगह दी जाती है। आप किसी कंपनी में चले जाइए, फिर भी विजिटरों के लिए जगह दी जाती है। मगर बड़ौदा पार्सल ऑफिस में ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग खड़े हैं या जमीन पे बैठे हुए हैं, वहां से भी हटा दिया जा रहा है साहब। तो इसलिए इस प्रकार से अभद्रता से व्यवहार की जाए और तानाशाही में व्यवहार की जाए, तो ये थोड़ा सा अपने लोगों को अच्छा नहीं है साहब। વડોદરા ન્યૂઝ ગુજરાતી આપણા શહેરના તાજા અને સચોટ સમાચાર માટે ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ, યુટ્યુબ અને વોટ્સએપ પર હમણાં જ જોડાઓ, ફોલો કરો વડોદરા ન્યૂઝ ગુજરાતી।